अब एक दूसरा सिंपल क्वेश्चन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं बेटा. See, this question says that a ball is thrown downward with a speed of 20 meter per second from top of a building, okay, of 150 meter height, and simultaneously another ball is thrown vertically upward with a speed of 30 meter per second, okay, from the foot of the building. देखो यहाँ डायग्राम में, if we consider this diagram, this is a building of 150 meter and a ball A is thrown vertically downwards with a speed of 20 meter per second. उसको 20 meter per second से नीचे की तरफ फेंकते हैं. Simultaneously another ball, here it is named as B, it is thrown from the base of the building at a speed of 30 meter per second in the upward direction. Okay, so find the time when both the balls meet. Find the time when both the balls meet. Okay, इसके भी बेटा दो मेथड्स हो सकते हैं. There can be two methods to solve this question. अगर हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करें, if we use basic concepts of kinematics, how can we think in this question that suppose in some time interval t, okay, in some time interval t, a ball moves some distance s1 in the downward direction and ball b moves in the upward direction up to some distance s2, okay, in the same time intervals, and suppose they meet at some point c, okay, somewhere in between. So clearly we can say that s1, this distance traveled by A, and s2, distance traveled by B, will add up to give the height of the building. Okay, clearly I can say that s1 plus s2 is equal to 150 मीटर. ओके, तो पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड द चैलेंजेस हियर, देन वी विल एम्प्लॉय the concept of relative motion to solve this question, and we will see that how easy it becomes. Okay, see beta, distance of particle A, okay, it will be, if I use the equation of motion 2, okay, uat plus half aat square. Okay, this is distance of particle A. Similarly, ubt plus half abt square, okay, it is equal to 150. It is equal to 150. Okay, for the particle A, actually acceleration is supporting the motion, gravitational acceleration is downward. Okay, so for the particle A, initial velocity is 20, so 20 into t plus half into g into t square, okay, plus for the B particle, actually gravitational acceleration is making it slow, it is opposite to the velocity of B, so I should write it like this: 30 into t minus of half gt square, correct, minus of half gt square. Minus why I have used here, because g is downward and the velocity of particle B is upward, so they are opposite in direction, so gravitational acceleration will actually slow it down with time, so it is equal to 150. Okay, considering that g is 10, okay, we can cancel 0 everywhere and this equation will become, see, 5t, okay, 2t plus 3t here will become 5t, and half t square and minus half t square will cancel each other, so we can cancel both these terms, and so it will become equal to 15. Okay, so clearly t here comes out to be 3 seconds. Okay, so this was one method in which we can calculate the time after which they will meet. Suppose if I employ the concept of relative motion in this and we try another method to do this, okay, the answer of this question came out to be 3 seconds. Now suppose another method I try to use, okay,
relative velocity of b with respect to a, suppose if I find vb with respect to a will be equal to vb minus va. Okay, velocity of b is in the upward direction, that is positive, so I should write it as 30 meter per second, right? 30 minus velocity of a is in the downward direction, so we should put a minus sign before writing it, so it will be minus 20, right? So relative velocity of b with respect to a is in the upward direction and it is 50 meter per second. Okay, now the relative distance between them, suppose if I write s relative here, okay, s of a with respect to b, it will be how much? It will be 150 as given in the question. Similarly, acceleration of b with respect to a, it will be a of b minus a of a, right? Acceleration of b minus acceleration of a. देखो b का acceleration is downward minus g. Similarly a का, क्योंकि वो भी एक freely falling body है, फेंका हुआ है, gravitational acceleration will act, वो भी minus g. तो यहाँ पे अगर लिखूं तो इसका acceleration minus g, इसका acceleration भी minus g, it will make 0. तो उनका जो relative acceleration है बच्चे वो क्या है? It is equal to 0. तो directly if I write using the second equation of motion in the relative form, तो कैसे हो जाएगा बेटा वो? S relative is equal to u relative into t plus half a relative into t square. Okay, now बच्चे see, distance, relative distance is 150, this one, relative velocity is 50 t plus half into acceleration is 0, है ना? Relative acceleration we have just found, it is equal to 0. So now clearly 50 t is equal to 150, so t will be equal to 3 seconds. Directly also we got it. So this was second method to solve the same question in the previous slide, and directly using the one equation we have got it with much simpler calculation and easy concept. Okay, so this is the advantage of relative motion concept. Okay, some complicated questions also can be solved in an easy manner. Chalo bachche, let us try one more question. See, two cars C1 and C2 are moving in the same direction in a straight road with velocities 12 meter per second and 10 meter per second respectively. ये कार है 12 मीटर पर सेकेंड से उधर जा रही है, दूसरी कार है C2 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है. तो ऑब्वियसली ये वाली कार क्योंकि स्लो है, दिस वन इज फास्ट, सो देयर इज अ अप्रोच, मतलब डिस्टेंस जो है वो उनके बीच का क्या हो रहा है? कम हो रहा है. सम टाइम आफ्टर सम टाइम C1 माइट कोलाइड विद C2. दिस इज द कंडीशन. ओके, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू वाज 200 meter, C2 started accelerating to avoid collision. ठीक है, C2 saw that C1 car is speeding towards it, बहुत तेजी से आ रही है towards itself. तो C2 decided कि I should move faster so that the car behind it does not collide it. So it started accelerating itself. It started increasing its speed. Okay. What is the minimum acceleration of car C2 so that they don't collide? ठीक है, they do not collide. इसमें क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग? We should think. Tell me first of all, C1 का relative velocity क्या हो जाएगा? Relative velocity of 1 with respect to 2 if I write, it will be 12 minus, मतलब C1 का velocity, that is V1, suppose this is V1, okay, and this velocity of C2 is suppose V2. So V1 with respect to 2, if we write, we will write V1 minus V2, okay. So 12 minus 10,
दिस विल फॉर्म 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है बेटा, रिलेटिव डिस्टेंस दैट इज C2 कितनी दूर है उससे, तो आई शुड राइट, ठीक है, x ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इट विल बी एक्चुअली 200 मीटर। ये तो ऑब्वियस है बेटा। तो अगर उनको कोलाइड नहीं करना है, तो क्या होना चाहिए कि ये इसकी वेलोसिटी जो है उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, एटलीस्ट 0 हो जाए बेटा। अगर उससे भी स्लो हो जाती है तब तो ऑब्वियसली दे विल नॉट कोलाइड, बट अगर एटलीस्ट 0 हो जाए उसके रेस्पेक्ट में, ठीक, then also it will not collide. Suppose कि C2 starts accelerating with some acceleration A, ठीक है, suppose C2 starts accelerating at this instant with some acceleration A, तो क्या होगा, if I write relative acceleration here, ठीक है, A of 2 with respect to 1 it will be A minus 0, क्योंकि acceleration of 2 तो कितना है, A है, बट एक्सेलरेशन ऑफ 1 अभी भी क्या है, इसका एक्सेलरेशन अभी भी क्या है बेटा, 0 है। ये तो गिवन है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे थे वो। तो हमारे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव डिस्टेंस आ गया। ठीक, तो आगे क्या करें, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली शुड बिकम 0 सो दैट दे डू नॉट कोलाइड। तो देखो, फॉर प्रिवेंटिंग कोलिजन, ठीक है, प्रिवेंटिंग कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 शुड बिकम 0। ठीक है बेटा, शुड बिकम व्हाट, शुड बिकम 0, तभी ये टक्कर रोक सकते हैं हम लोग, वी कैन स्टॉप दिस कोलिजन। ओके, लेट मी राइट द थिंग्स अगेन। इसका एक्सेलरेशन हमने क्या माना था, 0, एंड फॉर दिस एक्सेलरेशन फॉर द कार 2 वी हैव टेकन एक्सेलरेशन एज a। ठीक है, आई विल अगेन राइट द इनिशियल वेलोसिटीज इन द रिलेटिव फॉर्म। इट विल बी u of 1 with respect to 2, it was 2 meter per second here. Acceleration of what, 1 with respect to 2 क्या हो जाएगा बेटा, देखो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा 0 माइनस a, मतलब कि ये माइनस a हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ठीक है, टक्कर तो वहां पे होनी है जाके, सो पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 वो कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो वी हैव टू एक्चुअली मेक द वेलोसिटी 0 बिफोर द डिस्टेंस हैज बिकम 0। ठीक है, ये इधर की तरफ जा रही है, वो डिस्टेंस जब तक 0 ना हो जाए उससे पहले ही हमें क्या करना होगा, उसकी वेलोसिटी क्या करनी होगी, 0। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे अगर हम यूज करें यहां पर, यूजिंग द इक्वेशन थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सपोज कर लेते हैं बेटा कि कार 1 की जो वेलोसिटी है फाइनली वो क्या हो जाती है, आफ्टर मूविंग 200 मीटर, ठीक है, रिलेटिव टू ईच अदर, उनकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। सो फाइनल वेलोसिटी आई विल राइट रिलेटिव वेलोसिटी v, ठीक है, ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 फाइनली क्या होने वाली है, इट शुड बी 0। तो ये आई हैव रिटन 0। इनिशियल वेलोसिटी इज 2, सो 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज हाउ मच, माइनस a। ठीक है, देखो 1 का विथ रेस्पेक्ट टू 2 हैज कम आउट टू बी माइनस a एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 200 मीटर। ओके, तो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें, वी ब्रिंग दिस टू दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो 400, a विल बी इक्वल टू 4, सो a विल बी इक्वल टू 1/100, दैट विल बी 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड कार जो है, कार नंबर 2 शुड एक्सेलरेट एट लीस्ट विथ दिस एक्सेलरेशन सो दैट द कोलिजन कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है,
अगर एटलीस्ट इतने एक्सेलरेशन से वो जाएगा तो जस्ट व्हेन C विल जस्ट अराइव बिहाइंड द कार C2, उसकी स्पीड एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। 12 मीटर पर सेकेंड इसकी है ही, वो बढ़ा करके अपनी 12 मीटर पर सेकेंड कर लेगा और दोनों कोलाइड नहीं करेंगे। सो कार C2 शुड एटलीस्ट हैव दिस मच एक्सेलरेशन टू प्रिवेंट कोलिजन, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन से रिलेटिव मोशन इन अ लिफ्ट, ठीक है। सी, इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट वी कंसिडर द मोशन ऑफ बॉडीज, ठीक है बेटा। सपोज करो एक लिफ्ट है, ठीक है, इसका सपोज कर लेते हैं बेटा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a, और इसी को हम अपना रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं। सपोज आवर लिफ्ट इज द रेफरेंस फ्रेम, मतलब यहां पे ही एक ऑब्जर्वर है, यहीं पर एक, सपोज करो ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। तो यही क्या हो गया, एक रेफरेंस एक्सिस हो गया, इसी में हमारा ऑब्जर्वर बैठा है बेटा, ओके। द ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन दिस ओनली, सो अकॉर्डिंग टू हिम द लिफ्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। नाउ एनी अदर बॉडी विच इज प्रेजेंट हियर सपोज, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग स्टेट में ऐसे कोई बॉडी है यहाँ पर, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, नीचे की तरफ होगा ऑब्वियसली g, ठीक है, इन द ग्राउंड फ्रेम प्रैक्टिकली, ठीक है, बिकॉज एनी बॉडी फ्रीली फॉलिंग हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। सो इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट, ओके, इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट I write, ठीक है, acceleration of this body, suppose this body is A, okay, acceleration of A with respect to lift, acceleration of A with respect to lift will be equal to how much, acceleration of A the body minus acceleration of the lift, okay बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, acceleration of A is how much, माइनस g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या है हमारा a है, तो ये क्या आ जाता है माइनस ऑफ g प्लस a, ठीक है। तो लिफ्ट के अंदर बैठे हुए आदमी को एक्चुअली फॉर द ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू द लिफ्ट दिस बॉडी इज फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ हाउ मच, g minus a, g plus a, okay, and this minus sign signifies that this body is moving in the downward direction, it has an acceleration in the downward direction of g plus a value, okay. So in the reference frame of lift the acceleration of the freely falling body or object is g plus a, this is the magnitude given. I explained you that why minus sign I have put, because minus sign signifies that the acceleration of the body will be in the downward direction of how much, g plus a, okay. Let us understand this, ठीक है, with some examples here. देखो यहाँ पर एक example I have taken, okay. An elevator is moving with an upward acceleration a, okay. A coin is dropped from rest from the roof of the elevator. After what time the coin will strike the base of the elevator, okay. देखो ये एक एलिवेटर है बेटा और इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, हाउ मच, इट इज a, okay. Also there is a coin, suppose ये जो डॉट आप देख रहे हो, suppose this is a coin, obviously it will have an acceleration independent of lift, वो क्या होगा, g होगा in the downward direction, right, ठीक है। तो अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में चला जाऊं, इफ आई गो इनटू द फ्रेम ऑफ द लिफ्ट, मतलब लिफ्ट कैसा बन गया, अब हमारा ऑब्जर्वर बन गया है और वो रेस्ट पे आ गया, ओके। तो हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा बॉडी का बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, वो क्या आने वाला है, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट।
लिफ्ट के अंदर अगर बैठ करके आप देखोगे तो ACL से चल रहा होगा वो नीचे की तरफ, ठीक है। लेट अस फाइंड दैट हाउ मच इट इज। तो बेटा देखो वो कितना हो जाएगा, कॉइन का कितना है, -g है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। -g का मतलब क्या है फिर से, बिकॉज इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ऑल। माइनस अगर लिफ्ट की बात करूं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में A से जा रही है, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, g + a आएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगेन आई विल रिपीट, इस माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि वो नीचे की तरफ है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इन लिफ्ट फ्रेम इसमें ये हमने चेंज किया है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट हम बात कर रहे हैं अब। तो बस यहां पे बेटा क्या दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द रूफ इज हाउ मच, इट इज h। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस बेटा h है और कॉइन को नीचे जाना है, आपके पास एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, तो यू हैव वन मेथड, काइनेमेटिक्स की कोई भी इक्वेशन हम लगा सकते हैं। जैसे सेकंड इक्वेशन लगा दे अगर, S = ut + ½ at², ठीक है। सिंस इट इज सेड कि कॉइन इज ड्रॉप्ड, उसका मतलब उसका रिलेटिव वेलोसिटी अभी क्या है, उसके रेस्पेक्ट में नहीं फेंका गया, बस छोड़ा गया है। सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0 विथ रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट, ओके। डिस्टेंस उसको कितना ट्रेवल करना है बेटा, नीचे की तरफ जाना है, ठीक है, तो उसको मैं -h ले सकता हूं। अगर पूरी तरीके से हम वेक्टर पर डिपेंडेंट हो जाएं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ½ इंटू एक्सेलरेशन क्या था बेटा हमारा, -g - a इंटू t²। डरने की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मैंने भी -h लिया क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को हम लोग ने निगेटिव ले लिया। अगर नीचे की डायरेक्शन को इफ वी हैड टेकन पॉजिटिव तो फिर सिर्फ g + a भी लिखते तो भी काम चलता, एंड द डिस्टेंस वी कुड हैव टेकन h ओनली, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे बेटा t का क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2h, सब जगह से माइनस विल बी कैंसल्ड, एवरीवेयर द माइनस कैन बी कैंसल्ड हियर, सो 2 विल गो दिस साइड, बिकम्स 2h एंड g + a नीचे आ जाएगा, ठीक है, इनसाइड द रूट। This will be the time after which the coin will hit the floor of the lift, ठीक है। अगर बेटा ये लिफ्ट जो है उसका एक्सेलरेशन 0 होता तब तो बिल्कुल सिंपल केस हो जाता, g एक्सेलरेशन से जाके टकरा जाता, तब ये a क्या हो जाता, 0, राइट। अगर सपोज करो लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लग जाती, देन इफ द लिफ्ट वाज गोइंग डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a, सेम सिचुएशन विल बी हियर, बट द एक्सेलरेशन a विल बी रिटन एज -a, ठीक है, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। एंड इफ द लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, बेटा अगर कांस्टेंट स्पीड हो जाती, ठीक है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन में बोल रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड होती अगर लिफ्ट की, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट हमें क्या लिखना पड़ता, 0, बट दैट इज समथिंग एल्स, उस पे फिर से कभी बात करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेशन में। बट हियर आवर आंसर इज √2h/g + a, ठीक है ना। इसको मैं समझाता हूं, एक्चुअली क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, उसका जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, बाय हाउ मच, बाय a, ठीक है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।